Assalamu alaikum dear students, this is your teacher Abdullah Isaaq once again with a new video. Beta, this video is about the individual hadith. Question number 2 जो है वो आपका आता है. This is a compulsory question that comes which says that from the teachings given in the set hadith, write an account on the guidance given to the Muslims in their everyday lives. Set hadith से मुराद है कि आपके पास जो सिलेबस में 20 हदीस मौजूद हैं उन्हीं 20 हदीस में से आपने प्राइमरली आंसर जो है वो अपना लिखना है. हदीस नंबर आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? यू कैन यूज़ एनी एक्सेप्ट फॉर हदीस नंबर 12 बिकॉज ऑल पॉइंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स. कुछ में इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी का रोल है, कुछ में इंडिविजुअल्स को वैसे कुछ बताया गया. अगर सवाल ये कहता है कि राइट अबाउट हाउ इंडिविजुअल शुड कॉन्डक्ट दमसेल्व्स इन द कम्युनिटी, तो बेटे फिर वही हदीसें इस्तेमाल करनी है जो कम्युनिटी से रिलेटेड है. ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द नंबर्स विद यू इन द डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह. नाउ सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रो पैराग्राफ, और इंट्रो पैराग्राफ में क्या लिखना है? यू विल से दैट the Prophet sallallahu alaihi wasallam was a role model for all the Muslims, and the Quran Majid says that you have in the messenger of Allah the perfect role model for you. सबसे पहले तो ये बात लिख देनी है, और उसके बाद आपने ये बताना है कि Prophet sallallahu alaihi wasallam has set the base for how individuals should conduct themselves. आपने बताना है क्योंकि वो रोल मॉडल हैं, and he basically told us all the teachings. He implemented all of the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala of the Quran, and he basically set the base for how we individuals should conduct ourselves, all right? And he's the light for all of us, and his words are basically a source of guidance and inspiration. तकरीबन 60-70 odd words की इसको थोड़ा सा खींच के आपने इंट्रो पैराग्राफ जो है वो लिखते रहें. अब अगला जो बेटे सिस्टम है वो ये कि मिनिमम 4 से लेके मैक्सिमम 6 हदीसें आपने इस्तेमाल करनी है जो आगे मैं बताने वाला हूँ. फ्रॉम द 20 याद करके चले जाना. 5 हदीसें आपको याद होनी चाहिए इंडिविजुअल की, 5 होनी चाहिए कम्युनल की. बेहतर ये है कि आप 10 के करीब हदीसें जो है वो याद कर लें. अब आपने करना क्या है कि दूसरे पैराग्राफ में आपने कोट करनी है हदीस. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोटेड हदीस नंबर 6 which says that whoever of you sees an evil action, let him change with his hand, and if he is not able to do so, then with his tongue, and if he is not able to do so, then with his heart, and that is the weakest of faith. अब मेरे बच्चे अगर किसी को ये वर्ड बाय वर्ड नहीं आती है और भूल जाती है, तो फिर रादर देन कोटिंग इट आप क्या कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं दैट इन वन ऑफ द हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेसिकली टेल्स दैट इफ एनीबडी सीज एन evil then they should basically stop it with their hands, if not then with it tongue, if not then they should consider it bad in their heart. तो आप रेफरेंस के तौर पर उसे दे सकते हैं, कोट ना करना फिर अगर याद नहीं है तो. ठीक है, अच्छा हदीस देने के बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें बेसिकली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिविजुअल्स के बारे में बता के रहे हैं. तो आप कहेंगे हेयर द मुस्लिम्स, दिस हदीस टीचेस अस दैट मुस्लिम्स शुड बी taking action and they should not be complacent at all whatsoever. And the other thing it teaches the Muslims is that evil eradication is the number one thing that should happen, and that should be the goal of every single Muslim, that they should work for the eradication of evil in the society. Furthermore, Muslims should basically use the faculties that have been given by Allah subhanahu wa ta'ala. They have the power to stop evil. If they have the power to stop evil, and if there's no problem with that, if the law allows, then they should use the power to stop it. If not, then they should at least say it that evil is happening. उसके ऊपर खामोश नहीं रहना है, कहना है कि evil हो रहा है. और अगर वो भी नहीं कर सकते तो हाँ उसे बुरा ज़रूर जान लो. ठीक है, इसके बाद आपने बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ गाइडिंग द पीपल टू फॉलो द लॉ एज वेल. ठीक है, कि लॉ जो आपको कहता है आपने उसको फॉलो करना है, और इसके साथ साथ दिस इज टेलिंग द इंडिविजुअल्स दैट दे शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इरेडिकेट ईवल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट मेक्स द सोसाइटी बेटर. तो सिंपल सा तरीका है, हदीस कोट की और हदीस के आगे एक्सप्लेनेशन दे दी. अब आ जाओ अगला थर्ड पैराग्राफ में एक और हदीस दे दी. इट सेज दैट इट वाज सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ मैन, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह में अल्लाह ब्लेस हिम एंड गिव हिम पीस सेड द बिलीवर स्ट्राइव्स हार्ड इन द वे ऑफ अल्लाह विद हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे हम बताएंगे दैट दिस हदीस इज टीचिंग अस दैट वी आर एडवाइज्ड टू बी द बेस्ट मुस्लिम्स दैट वी कैन. ऑलराइट, फर्दरमोर it is the realization that everything comes from Allah subhanahu wa ta'ala. This hadith is telling us कि हर चीज़ जो आ रही है वो बेसिकली अल्लाह subhanahu wa ta'ala की तरफ से आ रही है, और आपके इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जान, ये सब कुछ अल्लाह की देन है, आपका इसमें कोई कमाल नहीं है. ठीक है, then it is teaching us the importance of sacrifice, because when you do sacrifice, when you give yourself for the betterment of the society, when you give your money for the betterment of the society, as a result of it the society gets better. And it is telling us that we should be doing jihad bil yad. ठीक है, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in one of his hadiths that the person whose feet are dust ridden
while striving in Allah's way, hellfire will not touch them. ठीक है बच्चे, ये कोट यहाँ पे आप दे सकते हैं. अब आ जाइए अब चौथे पैराग्राफ पे. फिर हमने एक और हदीस दे दी. This is that God will not show mercy to him who does not show mercy to others. So this hadith is teaching us to develop. It is telling the individuals, it is guiding the individuals. अच्छा, क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए हैं उसको इस्तेमाल करना. So it is guiding the individuals to develop traits of kindness and mercy. All right. It is telling the individuals that they should basically forgive the mistakes of others. All right, because Allah subhanahu wa ta'ala also forgives the mistakes of them. And they should be showing love and compassion to all the living things. They should have in their heart empathy for the others. लोगों के लिए दर्द दिल रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. And only the true believers are the ones who basically seek God mercy in this world and the hereafter. तो अगर अल्लाह ताला की मर्सी चाहते हो तो ये हदीस हमें सिखा रही है. This is guiding us that we should be merciful to the others as well. ठीक है. Then what will happen is that if we basically practice forgiveness, then as a result of it the community will have this sense of goodness in it. There will be a feeling of good in the society कि हाँ यार लोग गलती करते हैं तो गलती करने के बाद लोगों को एहसास है वो माफ़ भी कर देते हैं. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गलतियाँ कर ही चले जाओ, बट ये है कि किसी से जेन्युइनली कोई गलती हो गई तो माफ़ी की जो अमल है वो मौजूद है सोसाइटी में. देन दिस हदीस इज़ टीचिंग अस टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ताइफ. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में लोगों को माफ़ किया और ये हदीस उसकी जीती जागती मिसाल है. जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्ड्स कहे उनको फिर एक्शंस में भी करके दिखाया है. दैट ही फॉरगेव द पीपल ऑफ ताइफ व्हेन दे थ्रू स्टोन्स एट हिम. And at the conquest of Makkah, when the people were against him, they had not followed his teachings. उन पे अजाब आना था. Prophet sallallahu alaihi wasallam went and he forgave every single person. ठीक है बेटे. फिर आपने अगले पैराग्राफ में एक और हदीस मेंशन कर देनी है कि Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the world is a believer's prison and an unbeliever's paradise. So this hadith is guiding us. It is teaching us to follow the Shariat of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the following a Shariat? It is abiding by the limitations that have been set by Allah. अल्लाह की ज़ात ने जो लिमिटेशन सेट की हुई हैं उनको अबाइड बाय करना, ये हमें ये हदीस सिखा रही है, हमें गाइड कर रही है. इसके साथ साथ ये हदीस हमें गाइड कर रही है कि जो प्रिजन है दैट विल रिमेन अ प्रिजन. ऑल राइट. सिमिलरली दिस वर्ल्ड इज़ नॉट द फाइनल अबोर्ड. प्रिजन हम इसलिए कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपने रहना जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहना है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं रहना. ठीक है. और ये हमारा फाइनल अबोर्ड भी नहीं है. जो फाइनल अबोर्ड है वही हमारी पैराडाइस है. सो ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ टेस्ट एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड रियलाइज. देन इट इज़ ऑल्सो टीचिंग अस दैट वी शुड बी कंडक्टिंग आवर डेली लाइफ एज इफ वी आर ओवर हियर फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. And this is what this hadith is guiding us. Then you will say that this hadith is guiding us that we should work for a pious society and we should know about the fact that the hereafter is going to come. तो सोसाइटी में ओवरऑल सबको अच्छा होना है और ये बड़ा ज़रूरी है सबके लिए. तो बेटी अगर ये आप कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करना है बच्चे, इंट्रो पैराग्राफ लिखना है. इंट्रो पैराग्राफ लिखने के बाद एक हदीस को एक्सप्लेन करना है कोट करके, फिर दूसरी को करना है, फिर तीसरी को करना है, फिर चौथी को करना है. दिल करे तो पाँचवीं छठी को भी कर दें, वो तुम्हारी मर्जी है जैसे करना चाहो. बट दिस इज़ इट विद माई क्लास. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.